بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. عمران خان کو مٹانے کے لیے نکلے تھے, پاکستان تحریک انصاف کو مٹانے کے لیے نکلے تھے اور پاکستان کے عوام کو کچلنے کے لیے نکلے تھے. کرش عمران خان اور کرش پی ٹی آئی اور کرش پاکستان کے عوام, ان کو کرش کرنے کے لیے جو فورسز نکلی تھی 14 جماعتی حکمراں اتحاد بڑے تم تراک سے نکلا تھا اور اس کی قیادت کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب اور جناب نون لیگ کہ نون لیگ آپ کس کا نام لیں کیونکہ ڈیفیکٹو کوئی اور ہے, ڈی جورے کوئی اور ہے. تو بہرحال ڈیفیکٹو ڈی جورے سارے مل کے یہ سارے کام کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو خوش مبارکباد بھی دے رہے تھے اور اقتدار کا کیک بھی مزے سے لے کے کھا رہے تھے. لیکن اب پتہ چلا کہ جناب نہیں, اقتدار کی میں کسی کو شیئرنگ نہیں ہو سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شیئرنگ ہو. نہ ہی مولانا شیئرنگ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این جو مسلم لیگ نواز ہے وہ شیئرنگ پسند کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اکیلے کھائیں گے اور اقتدار کا کیک ہے, بس آپ سب لوگ اچھوت ہیں, شودر ہیں. انہوں نے کہا زرداری صاحب آپ کون ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کون ہوتی ہے, اے این پی کا کیا مجال, بلوچستان عوامی پارٹی, ایم کیو ایم, یہ کون لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم نے جگہ بنا لی ہے, ہمیں واپس آنا تھا, NRO 2 کمپلیٹ ہوا, مقدمات ختم ہو گئے, نیب ترامیم ہو گئی, سب کچھ ہو گیا اور جوڈیشری کو بھی ہم نے زیر کر لیا, آنریبل ججز کو بھی گالیاں دے دی, میڈیا کو بند کر دیا, تالا لگا دیا, سب کچھ ہو گیا, سب اب ہمارے زیر آ چکے ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنے تابع کر چکے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا جی اب ہے الیکشن کا سیزن اور الیکشن اگلا الیکشن ہوگا وہ ہمارا ہوگا. اس میں سب کی ایسی کی تیسی کہ کوئی ہمیں ہم ہیں انٹچیبل. وہ تو درمیان میں کچھ عرصے کے لیے کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی اور گڑبڑ ہوئی, لیکن اب ساری چیزیں واپس ہو رہی ہیں. لہٰذا ہم انٹچیبل تھے, ہم ہیں اور رہیں گے. اور اس لیے یہ افواج پاکستان کون ہوتی ہے جی, جی ایچ کیو کون ہوتا ہے اور اعلیٰ عدلیہ کیا ہوتی ہے اور میڈیا کون ہوتا ہے, یہ سب کے سب ہمارے ہیں. جب سب کو کنٹرول کر لیا اور اب انہوں نے رخ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اس وقت دو کشتیوں میں سوار ہیں, ایک طرف زرداری صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک طرف دیکھتے ہیں وہ جاتی عمرہ کی طرف, مریم صاحبہ کی طرف, نواز شریف صاحب کی طرف, شہباز شریف صاحب کی طرف. تو دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے حالات آہستہ آہستہ ان کے اب آپس کے برتن کھڑک رہے ہیں. حکمراں اتحاد آپس میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتا چکی ہیں, لیکن مزید اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ بلاول بھٹو نے کل اوپنلی کھلے عام جلسے میں کہا, کیونکہ بند کمروں میں تو باتیں ہو رہی تھیں, ایک دوسرے کو کہا جا رہا تھا, گلے شکوے کیے جا رہے تھے کہ جناب یہ جو شہباز شریف صاحب اور نون لیگ اور مریم صاحبہ پنجاب میں جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, ہمارے وزراء کے ساتھ کر رہے ہیں, ہمارے وزراء کو بے اختیار کیا ہوا ہے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی, تو اس طرح سے نہیں ہے. اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب ہیں جو ان کے ہاتھ میں تو ہاتھ پلے کچھ ہے ہی نہیں. پوری کی پوری پنجاب بجٹ نون لیگ تیار کر رہی ہے اور درجہ حد بندیاں اور نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. چیئرمین نادرا کو فارغ کر کے اپنی پسند کا چیئرمین نادرا لے آئے ہیں. الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملا لیا کیونکہ وہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں جو کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں, راجہ صاحب. تو سعید مہدی صاحب نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اکتوبر 99. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اندر خانے آپ کر رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا. ہم مل کر آئے تھے اور یہ جو 14 جماعتی حکمراں اتحاد بنا ہے اور اس وقت اقتدار کے مزے لوٹے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور پنجاب میں آپ کی حکومت بن چکی ہے, نگراں حکومت تو ایک ڈمی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں اگنور کریں. تو وہ اگنور کریں گے. پنجاب میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اندر خانے ادھر کا رخ بھی کرے, ہم کھا پی جائیں گے, چیر پھاڑ دیں گے. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اس میں اب ندیم افضل چند نے اب دوبارہ سے ایک بات کر دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کا اتحاد جو ہے وہ اب نہیں چل سکتا بہت زیادہ دیر, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے اور یہ جو اتحاد ہے یہ ٹوٹنے والا ہے. اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آپس میں کرنا چاہیے, پولیٹیکل ایگریمنٹ کرنا چاہیے. مقدمات اپنی جگہ, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن پولیٹیکل ایگریمنٹ جو ہے پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہونا چاہیے اور اس کے لیے وہ تو کریں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ جو قرارداد منظور کی فوجی عدالتوں کے قیام کے بارے میں قومی اسمبلی سے خواجہ آصف صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آنن فانن قرارداد بھی منظور کر لی اور پیش بھی خواجہ آصف صاحب نے کی. اور خواجہ آصف صاحب پتہ ہے آپ کو
किसके माउथ पीस हैं ये जो कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हम तो इसको मुखालफत कर रहे थे, इसको अपोज कर रहे थे, तो आपने किसके कहने पे ये सारा कुछ कर दिया बगैर किसी सलाह मशवरे के। और इसीलिए रजा रब्बानी साहब ने सेनेट में फिर इसको शर्मनाक अमल करार दिया और इसको अपोज किया। और पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब को बराह रास्त किसी ने हुक्म दिया था कि जनाब ये काम करें, तो शहबाज शरीफ साहब ने वो काम कर दिया। एक डमी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने ये एक्ट किया है। और जिसके बाद क्योंकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वही अगर फौजी अदालतों के क्याम, सिविल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद ही और हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम लीग नवाज खुद ही फौजी अदालतों के हक में बयान देना शुरू कर दे और उसको प्रोसीड करना शुरू कर दे, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस हैं फौरी चैलेंज की गई हैं। चौधरी एजाज हसन साहब मैदान में उतरे हैं, सरदार लतीफ खोसा करके घर पर जो फायरिंग हुई है वो भी वकीलों का अगवा किया जा रहा है और वकील एक सख्त मैसेज दे रहे हैं। और वकीलों का कोई इनका इरादा नहीं है कि वो सारी सिचुएशन में जो इस वक्त डिक्टेटरशिप है और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, नॉन कन्वेंशनल जो मार्शल लॉ इस वक्त पाकिस्तान में राइज है उसको वो कबूल कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और जुडिशरी भी इस वक्त मुहासरे में है और जुडिशरी भी ये चाहती है कि उसको भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिले और पब्लिक सपोर्ट मिले, सब कुछ मिले, उसके बाद वो भी आगे बढ़ना चाहती है। लिहाजा ये अब काम शुरू हो चुका है। फिर एहसन इकबाल साहब आए हैं मैदान में और एहसन इकबाल साहब ने गिला किया है जनाबे पीपल्स पार्टी से कि इस तरह न करें, जो इख्तलाफात हैं उसको खुलकर जो जलसों में पब्लिक में ये डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, इससे हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मुतासर होगा। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये हुकूमत का खात्मा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो 1 घंटे के अंदर अंदर इस हुकूमत का खात्मा हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन वो कब फैसला करते हैं ये जरा सोचने की बात है कि वो भी ज़ाहिर जरदारी साहब भी तो है ना अपने मामला सेट करने के लिए। अब चेयरमैन पीसीबी पे लड़ाई हुई है और तो चेयरमैन पीसीबी पे अब एक इत्तला आई है कि जनाब नजम सेठी साहब जो हैं उनकी छुट्टी हो सकती है और चौधरी ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो नए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जो हैं वो ज़का अशरफ साहब हो सकते हैं और इसके लिए पीपल्स पार्टी को मैसेज दिया जाएगा जरदारी साहब को कि ठीक है जी हम आपकी ये शर्त कबूल करते हैं, लेकिन उसके बदले में फिर आप हमें क्या देंगे, वो एक अगला काम शुरू हो जाएगा। तो देखना है कि चौधरी ज़का अशरफ साहब के मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का सीज फायर होता है या फिर जो बड़ा असल कंसर्न है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से पुश किया जा रहा है और उसको ब्रेक लगाने के कहा जा रहा है वो भी जरा देखनी पड़ेगी। फिर ये कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो है वो भी अब आवाजें मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी सिलसिला शुरू हो चुका है। आज़रबाईजान से जो डील की जा रही थी LNG की खरीदारी पे, जिसपे शहबाज शरीफ साहब गए हैं और जाके मुआहदे शुआहदे भी कराए हैं और आके खुशखबरी भी सुनाई है, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस पे शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने ECC की रुकनीत जो है उससे इस्तीफा दे दिया है। और इस तरीके से ये उनके पास एक ओहदा था सरकार के काबीना के अंदर, एक कमेटी होती काबीना की, ECC उसको कहते हैं। तो लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे माया कुदरती गैस LNG खरीदने पर इख्तलाफात के बाद इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा है कि आज़रबाईजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के जरिए खरीदे जाएं। ये उन्होंने कहा कि ये इस पे हमारा इख्तलाफ था, लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया था। और ये शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ था कि आज़रबाईजान से LNG कार्गो पाकिस्तान की निजी कंपनी के जरिए खरीदे जाएं और पेट्रोलियम डिवीजन ने शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया था। मतलब कि उनकी वजारत को कोई और कंट्रोल कर रहा था, यानी कि बड़ा करते जो है शहबाज शरीफ साहब वो कंट्रोल कर रहे थे और इसलिए उनकी बात नहीं मानी गई। तो ये दोबारा से काम शुरू हो चुका है। हसन इकबाल साहब कहते हैं बजट की तैयारी में तो तमाम इत्तेहादियों की मर्जी मंशा शामिल थी, तो अब ये जो पब्लिक में आके बातें की जा रही हैं ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर पंजाब जो हैं बाकर साहब जी वो कहते हैं कि आलमी मालियाती इदारों से ताल्लुकात बदस्तूर खराब हो रहे हैं और ये ताल्लुकात बेहतर ना हुए तो इससे पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होंगे और ये सब कुछ होगा। फिर जी अभी तक एक और बात भी बता दूं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जो कि गिरफ्तार जो कि हमारा यूनान में कश्ती उल्टी है और उसमें पाकिस्तानी बहुत सारे सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, उनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। इमरान खान साहब
के गिर्द दायरा तंग करने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स को हरासा किया जा रहा है। और राजी स्कैंडल जिसके बारे में डिटेल्स आ चुकी हैं, उनमें उनकी बहन को दोबारा तलब किया है और ये एंटी करप्शन कर रही है। और ये मामला इसमें अब ऑलरेडी कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं और वजाहतें भी आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं नहीं जनाब ये सब कुछ तो होगा। ये सब कुछ होने के बावजूद, ये सारे मामला होने के बावजूद, लेकिन अभी तक हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तक भी हुक्मरान इत्तेहाद के साथ जुड़ी हुई है और खास तौर पे नून लीग के साथ। और नून लीग के साथ उसका जो एक गैर फितरी तौर पे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो फेवर है वो हजम नहीं हो रही, क्योंकि आखिर ये वजह क्या है, ये सब कुछ क्या है, इतना कुछ होने के बावजूद मुकम्मल सपोर्ट क्यों फराहम की जा रही है। बहरहाल ये ऐसे मामलात हैं कि आने वाले दिनों में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी आनी खुलकर आएंगी। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब ले रही है, पोजीशन ले रही है। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अगर वो अभी भी खामोश रही तो फिर मेरा ख्याल है कि वो अंदरून सिंध तक महदूद होकर रह जाएगी और उसके बाद फिर उसको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इस वक्त बड़े ही मुकाबला हो रहा है 2 और 2 4 की तरह। देखते हैं क्या होता है। इमरान खान साहब दस्तूर मैदान में मौजूद हैं। ये हफ्ता इस एतबार से भी आज से जो शुरू हो रहा है इम्पोर्टेंट है कि इसमें इमरान रियाज खान साहब का जो है वो रिकवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया। गिरफ्तारियों का सिलसिला नया शुरू हो चुका है। मैं आपको ये ज़ाती इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि नई लिस्टें बन चुकी हैं और नई गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये अगेन एक क्रैकडाउन शुरू करने का इरादा है। उसकी वजह यह है कि अब लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फेज से निकल आई है जो 9 मई का प्रेशर उस पर डाला गया था, उस प्रेशर से निकल आई है और अब वो असर नो मुनज़्ज़म होके, रीऑर्गेनाइज होके जो है जितना मतला साफ कर होना तो हो गया। लोटा क्रेसी जो लोगों ने जाना था चले गए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बननी थी बन गई। अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों का कर दिया है आगाज और इमरान खान साहब कॉल भी दे चुके हैं। और ये अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब जलसे भी करेगी, जुलूस भी करेगी और देखते हैं कि उनको कौन रोकता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे उनका नाम अभी भी लेने पे पाबंदी है। इवन हुक्मरान जो हैं वो भी उन पे भी पाबंदी है, हुक्मरानों पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी हुक्मरान खुद हुकूमत है, हुकूमत खुद हुकूमत है, वजीर खुद वजीर हैं, वजीर आजम खुद वजीर आजम है और काबीना खुद काबीना है। ये तमाम के तमाम भी अब आपको पता है कि इमरान खान का नाम ही लेते। यानी कि इतना असर हुआ है। वो जो मीटिंग थी मिलिट्री ऑफिसर्स की जो मीटिंग थी टीवी ओनर्स के साथ, उसमें टीवी ओनर्स को और न्यूज मैनेजर्स को कहा गया था कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना और ना दिखाना है, ना नाम नशर होना चाहिए, ना दिखाया जाना चाहिए, ना टिकर पे, ना उसकी शक्ल, कुछ नहीं होना। तो वो हुक्म जो है हुक्मरान इत्तेहाद ने भी अपने आप पे अप्लाई कर लिया है, या हो सकता है उनको भी कह दिया हो। उन्होंने जिन्होंने मीडिया मालकान को कहा उन्होंने हुक्मरानों को भी कह दिया होगा कि खबरदार अपना मुंह बंद रखें, आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना। तो लिहाजा वो सारे भी उसी की ताबेदारी कर रहे हैं। और अब वो मुन्ने कब्बा, वो फलां इस तरीके से वो तकरीर में करते हैं, वो करके करते हैं, उन्होंने ये करते हैं जनाब, जिसका ये करते हैं। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प सूरत हाल है कि हुक्मरान खुद भी अपना आज़ाद नहीं है नाम लेने में। इमरान खान साहब का नाम ही लेते। देखें कैसा इसको कहते हैं कंट्रोल। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।